وہ لینے کے بعد مجھے افاقہ ہوا ادھر کوچ کی تیاری زور و شور سے شروع کر دی گئی تھی۔ میں نے ماریا کو تاکید کی کہ وہ کوچ کی تیاری کے انتظامات کا جائزہ لے اور چنٹو سے میں نے کہا کہ وہ ماریا کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ توکی پاما کو میں نے چھولداری میں روک لیا تھا۔ ماریا اور چنٹو چلے گئے تو میں نے توکی پاما سے کہا کہ مجھے کسی بوڑھی عورت کا بھیس بدلنا ہے۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور ذرا ہی دیر بعد وہ میرے لیے مطلوبہ سامان لے آئی۔ میں نے جلدی ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدلا، چادر سی ڈالی، اس کے بعد باہر نکل گیا۔ اس عرصے میں توکی مجھے حیران نگاہوں سے تکتی رہی، لیکن ذہین تیز سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ پھر میرے کہنے پر وہ زمانی انداز میں مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں بھی باہر آ گیا۔ پڑاؤ میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، سب تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ رات ہو چکی تھی، عارضی الیکٹرک پولز پر بلب روشن تھے، بڑی چارجز ٹارچوں سے بھی کام لیا جا رہا تھا۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے ایک کھمبے بھی استعداد دکھائی دیے۔ میں نے سیدھا سیڈی اور سنتھیانا کے خیمے کا رخ کیا جو پڑاؤ کے مشرقی گوشے میں تھا۔ جلد ہی میں وہاں جا پہنچا۔ خیمے کی جگہ دیکھ کر مجھے معنی خیز سی خیرت ہوئی۔ وہ الگ تھلگ تھا، اس کے ارد گرد کوئی خیمہ نہیں تھا، باقی دور تھے۔ چندی خیمے تو نظر آئے مگر جائزہ لینے پر وہ گودام لگے۔ ان سے سامان کے بڑے صندوق اور بورے اٹھائے جا رہے تھے۔ یہ مزدور تھے جو وہاں بار برداری میں مصروف تھے، اور ایک بڑا سا ٹرک بھی کھڑا تھا۔ یہ کرائے کا لیا ہوا تھا، اس پر نمبر پلیٹ آسام کی تھی۔ خیمے کے ارد گرد کچھ جھاڑیاں تھیں۔ میں تاریکی اور ان کی آڑ لیتا ہوا خیمے کے پچھواڑے آ گیا۔ خیمے کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور اندر دو سائے مجھے موجود دکھائی دیے۔ یہاں سے مجھے اندر جھانکنے کا کوئی سوراخ یا درز نظر نہیں آئی۔ میں آہستگی سے اور بے آواز دوسری جانب سے رکھ گیا۔ یہاں زپ کی جگہ پر ایک رخنا دکھائی دیا۔ میں نے اسے اپنی ایک آنکھ چپکا دی۔ اندر پیٹرومیکس کی روشنی میں مجھے دونوں بیٹھے نظر آئے۔ ان کے چہروں سے فکر مندی اور برہمی مترشح تھی۔ سیڈی پائپ سلگائے ہوئے تھا اور سنتھیانا کے سامنے بوتل رکھی تھی اور ہاتھ میں جام۔ تمہاری پلاننگ بری طرح ناکام رہی ہے سیڈی، سنتھیانا شوہر سے کہہ رہی تھی۔ آواز دھیمی تھی۔ وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی تو اچھا ہی ہوا ڈارلنگ کہ ہم نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ جان چھوٹی اس سے، سیڈی بولا۔ تم ایک نمبر کے احمق آدمی ہو، سنتھیانا نے اسے بری طرح کوسا۔ کیا تم ابھی تک یہی سمجھے ہوئے ہو کہ دیوان یہاں سے جا چکا ہے؟ تو اور کیا راستہ باقی بچا تھا اس کے سامنے؟ وہ حیرت سے بولا۔ جرائم پیشہ تو نکلا وہ، ورنہ فرار کیوں ہوتا؟ اب پولیس کے چھاپا مارنے کے بعد بھلا وہ ادھر کا رخ کیوں کرے گا؟ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ رسید کر ڈالوں۔ سنتھیانا بندھائے ہوئے لہجے میں بولی، پھر ایک گھونٹ جام کا بھرا اور کہا، کیا تمہیں ابھی تک دیوان اور ماریا کے بیچ تعلقات کا اندازہ نہیں ہو سکا؟ وہ دونوں آپس میں گہرے دوست بن چکے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پولیس کے چھاپے کے وقت ماریا نے بڑی چالاکی اور رازداری سے دیوان کو فرار کروا دیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے ڈارلنگ، ہم ماریا پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تو ہیں ہی۔ جیسے ہی وہ نظر آیا میں دوبارہ انسپیکٹر برج بہان کو مطلع کر دوں گا۔ سیڈی ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا اسے میری اتنی فکر نہیں تھی، مگر سنتھیانا کو ضرور میری وجہ سے تشویش لاحق تھی۔ مجھے تو اصل فکر ہیروں کی ستانے لگی ہے۔ کچھ توقف کے بعد سیڈی دوبارہ بولا، ڈلہوزی کو میں نے 2 دن بعد ہر صورت میں ڈلیوری دینا تھی۔ یہ وقت پر نہ ہوئی تو ہمارے خفیہ کاروبار کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب تم اپنے سر سے دیوان کا بھوت اتار کر ہیروں کی فکر کرو، جو اصل پریشانی کی بات ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا مردم بار قسم کی نظر آنے والی سنتھیانا اپنے شوہر کی اس بات سے متفق نظر آنے لگی۔ پیشانی مسلتے ہوئے تفکر سے بولی، یہ ابھی ایک نئی مصیبت ماریا نے کھڑی کی ہوئی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس قدر اچانک کوچ کا حکم دے ڈالے گی، اور وہ بھی بنگالہ کا۔ اب یہ بتاؤ کہ مسٹر ڈلہوزی کو ہیروں کی ڈلیوری کس طرح ہوگی؟ اس کا فون بھی کل آیا تھا، میں نے تو یہی بتا دیا تھا کہ وہ پرسوں رقم لے کر آ جائے۔ سیڈی پریشانی سے بولا۔ سنتھیانا چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے قریب رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی ہو؟ سیڈی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر سنتھیانا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب سے رابطہ ہوتے وہ ہلکی آواز میں بولی، مسٹر ڈلہوزی بات کرنے ہیں؟ اس پر سیڈی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرا دل یک بار کی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سنو، کیا ہم ہیروں کی ڈلیوری بمبئی کے بجائے کسی اور شہر سے کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے چٹاگانگ سے۔ کہتے ہوئے وہ دوسری جانب سے جواب سننے کی منتظر رہی۔ سیڈی کی نظریں بیوی کے چہرے پر جمی رہیں۔ میرے اندر بھی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ یہ دونوں میری جڑیں کاٹنے کے در پہ تھے، اور اب میں ان کی بنیادیں ہلانے کے لیے کوشاں تھا۔ چوٹ پر چوٹ اور جیسے کو تیسا اسی طرح جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ بازی کا میرا پہلا اصول رہا تھا کہ دشمنوں کو انہی کے ہتھیار سے زیر کرتا۔ دیکھیے مسٹر ڈلہوزی، ہمیں اچانک ایک مجبوری آن پڑی ہے۔ سنتھیانا دوستانہ لہجے میں چالاکی سے بولی، یہاں کچھ قانونی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔
पुलिस की भारी नफरी ने आज भी हमारे पड़ाव पर छापा डाला है। नहीं, हीरों का इशू नहीं था, आप बेफिक्र रहें। मसला ये था कि प्रोफेशनल्स जेलसी के सबब हमारी सर्कस कंपनी के खिलाफ एक मकामी सर्कस कंपनी ने साजिश करके पुलिस छापा लगवाया। इससे पुलिस को कुछ हासिल तो नहीं हुआ, अलबत्ता हमारी सर्कस कंपनी के मालिकान ने इस सूरत हाल से घबराकर फौरन बांग्लादेश रांगामाटी की जानिब कूच करने का हुक्म सादिर कर डाला है। मुनासिब समझे तो हम खुद रांगामाटी पहुंचकर वहां से चिटागांग किसी होटल में मीटिंग रख लेते हैं, तो फिर रांगामाटी ही में मुलाकात तय कर लेते हैं। अब जैसा आप तय कर लें। बाकी अगर आपको मेरी बात पर किसी किस्म का शक हो तो आप यहाँ आकर पुलिस छापे की तस्दीक कर सकते हैं। आप अपने जराये से भी पता। ओके मिस्टर दिलहोजी, शुक्र है कि आपने कंप्रोमाइज किया। दरअसल इसमें हम दोनों ही का फायदा है। एहतियात अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच। आखिर में कहते हुए संत्याना ने फोन बंद कर दिया और गहरी तमानियत भरी सांस लेकर सर कुर्सी की पुश्तगाह से टिका दिया। सैडी खुशी के मारे उठा और बीवी के होंठ चूम लिए। तुम इसे रजामंद करने में कामयाब होगी डार्लिंग? उसने पूछा। हाँ, मैंने चाल ही ऐसी चली थी कि वो भी डर गया। संत्याना बोली। अगर मैं उसे ये कहती कि ये हुक्म अचानक मालकान की तरफ से हुआ है तो दिलहोजी अकड़ जाता और हमारी बात नहीं मानता। हमें यही बावर कराता कि यह हमारा अपना जाती मसला है, उसे खुद ही संभालो, लेकिन पुलिस वाली बात करके मैंने उसे मजबूर कर दिया। संत्याना वाकई चालाक थी, तहम इसमें मेरा भी फायदा था। मुझे इत्मीनान हुआ कि अब ये दोनों मुर्दार भी यहाँ से कूच करने के लिए मजबूरन सही रजामंद हैं, वरना मेरा मामला खटाई में पड़ सकता था। इनके मानने की एक वजह वो स्याह हीरे भी थे जिनसे इन्हें बहुत बड़ा माली फायदा होने वाला था। इसी लालच में उन्होंने सोचा होगा कि बात बढ़ाने के बजाय बाहसन खूबी निपटा दी जाए। लेकिन अब हमें रांगामाटी पहुंचकर इस मारिया वाले कजिये को भी हमेशा के लिए निपटा देना चाहिए। संत्याना ने आखिर में नीची आवाज से कहा। हमारा हीरो वाला खुफिया कारोबार फैलता जा रहा है और हमें किसी कारोबार की आड़ की अशद जरूरत है जो सर्कस से बेहतर और नहीं हो सकती। रांगामाटी पहुंचते ही मारिया का किस्सा हमेशा के लिए निपटाना होगा। तुमने ठीक कहा डार्लिंग, जवाब में सैडी भी खोले से बोला। मैंने सारा प्लान बना लिया है। रांगामाटी पहुंचते ही एक रोज बाद फिलिप्स और रॉयल मारिया को हादसाती तौर से हम किनार करके मार डालेंगे। इसके बाद ब्रिटिश स्टार सर्कस कंपनी के हम मालिक होंगे। कहती हुई सैडी सफाकी से मुस्कुराया। लेकिन हनी, तुम्हारी वो पुलिस छापे वाली प्लानिंग तो फेल हो गई। दीवान गिरफ्तार नहीं हो सका और फरार होने में कामयाब भी हो गया। संत्याना ने कहा। अपने जिक्र पर मेरा दिल अब जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा। मुझे उसका एतराफ है डार्लिंग, सैडी बोला। वो कमबख्त दीवान वाकई छल्लावा साबित हुआ। उसे पड़ाव से राजदारी के साथ फरार कराने में भी जरूर मारिया ही का हाथ होगा। बस मुझे यही तसल्ली करना थी। और फिर मैं वापस पलटा ही था कि अचानक किसी से बुरी तरह टकरा गया। वो गहने जैसी जिसामत वाला आदमी था। इस पर मुझे फिलिप्स या राइल का शुबा हुआ, जिनसे मेरा एक रोज कबल धुआंधार किस्म का सामना हो चुका था। वो मुझे पहचाना तो नहीं होगा, अलबत्ता मेरी मौजूदगी ने उसे चौंकाने और करीब आने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा। बहरहाल ये नाजुक सूरत थी। मैंने संभाला लेते इसकी नाक पर खोंचा रसीद कर दिया। वो अपने हल्क से कराहती हुई आवाज खारिज करता हुआ उलट कर गिरा। मैंने फौरन दौड़ लगा दी। मौका हालात ऐसे नहीं थे कि मैं मजीद उससे उलझता। यही काफी था कि मैं उसे हटा कर भाग निकला था। वापस अपनी चुलदारी में आकर दम लिया तो वहां चिंटू मौजूद था। खैरियत मास्टर, क्या हुआ? कोई पीछे लगा हुआ है? उसने चौंक कर पूछा। नहीं, पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ, मगर कहते हुए मैंने उसे सब बता दिया। चिंटू की आंखें फैल गईं। वो तशवीश अमेज तफक्कुर से बोला। मैं भी ये सब मादाम को बताता हूँ, बल्कि अब तो इन दोनों नमक हरामों को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ठहर जाओ चिंटू, मैंने कहा। जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। अभी वक्त हमारे हाथ में है। वो रुक गया। उसे मुझ पर पूरा एतमाद था। मारिया कहाँ है? मैंने पूछा। वो अपने खेमे में है और तैयारी में मसरूफ है, चिंटू बोला। कहो तो उसे बुला लूं? अभी नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो कि अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक कोई अंदर दाखिल हुआ। वो मारिया थी। तुम अचानक किधर गायब हो गए थे सोहराब? खैरियत तो है ना? मारिया ने मुझसे कहा। खैरियत बिल्कुल नहीं है मादाम, मेरी बजाय चिंटू ने कहा। क्या मतलब? मारिया ने उलझी हुई निगाह उस पर फिर मुझ पर डालते हुए कहा। मैंने चिंटू को खिड़की के पास जाने का इशारा किया और फिर मारिया को करीब कुर्सी पर बैठने का कहा। फिर मैं भी उसके करीब एक चौबी स्टूल खिसका कर बैठ गया और धीरे धीरे उसे मिस्टर एंड मिसेस सैडी की गुफ्तगू के बारे में आगाह कर दिया, जिसे सुनकर मारिया चंद सानियों के लिए दम बखुद से रह गई। फिर उसका रिएक्शन हस्बे तवक्का हुआ। तो ये बात है। इसका मतलब है मुझे कुछ करने से पहले इन दोनों का कजिया निपटा देना चाहिए। इसका चेहरा मारे तैश की तमतमाने लगा था। तुम क्या करोगी? मैं सबसे पहले तो पुलिस को इनके बारे में बताऊंगी, फिर इन दोनों नमक हरामों को अपनी कंपनी से बेदखल करूंगी। लेकिन क्या तुमने स्याहीरों की तस्दीक कर डाली के जो इनके पास मौजूद हैं? मैंने गहरी सांस खींची और बोला। मारिया, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हीरे इन्हीं के पास होंगे, लेकिन पुलिस अफसर को इन्होंने मेरे मसले में उलझा रखा है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और ना ही तस्लीम करेंगे। तो फिर
मारिया ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर परेशानी और हल्की तशवीश के आसार थे। जैसे चल रहा है फिलहाल ऐसे ही चलने दो, तुम खोज की तैयारी करो और उस पर तवज्जो मरकूज रखो, और मैं इन दोनों शैतानों पर, मैंने कहा, यहां से कूच करने के बाद मैं इनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। तभी मैंने देखा मारिया का चेहरा एकदम मुतफक्किर नजर आने लगा। क्या हुआ, तुम मेरी बात से मुतमईन नहीं हो? यह बात नहीं, मारिया बोली, तुम्हारी बातें कभी गलत साबित नहीं हुई, इसलिए मैं आंखें बंद करके तुम्हारे मशवरों पर अमल करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम किस तरह हमारे साथ जा सकते हो। इसका हल है मेरे पास मादाम। अचानक खिड़की की तरफ से चिंटू ने जवाब दिया। वो क्या? हम दोनों ने बैक वक्त उसकी तरफ देखा। चिंटू ने एक नजर खिड़की से बाहर देखा, फिर उठकर हमारे करीब आ गया। मास्टर को गुरीले की खाल पहनाते के। फैंटास्टिक, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने चिंटू। मारिया ने खुशी से एक ताली बजाकर किलकारी मारी। मैं भी मुस्कुरा उठा। तरकीब लाजवाब थी। मुझे ही नहीं, मारिया को भी इसकी जहानत का एतराफ करना पड़ा। जरा देर बाद ही मेरे लिए गुरीले की खाल का बंदोबस्त कर दिया गया। वो मैंने पहनकर जरा चल फिर कर देखा तो चिंटू मुस्कुराकर बोला, ऐसे नहीं मास्टर, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहे हो, यूं चलो। कहते हुए चिंटू ने अपने दोनों कांधे झुकाए, मुंह से गूं गूं कर कर की आवाजें निकाली, फिर गुरीलों जैसी हरकतें करने लगा। मैं और मारिया हंस पड़े। गुरीले की खाल पहनकर मुझ पर वाकई ये गुमान ही नहीं होता था कि किसी इंसान ने खाल पहन रखी है। मेरे लिए एक पिंजरा भी मखसूस कर दिया गया था। पड़ाव की रवानगी का वक्त आ चुका और मुझे राजदारी के साथ एक लकड़ी के डिब्बा नुमा सलाखदार दरवाजे वाले पिंजरे में डाल दिया गया। किराए की बार बरदार दखानी कश्तियों के जरिए चंदर घाटी से रवानगी अमल में आई। इनका रुख बे आफ बंगाल के खुले पानियों की तरफ था। यहाँ गहरे समंदर में ब्रिटिश स्टार सर्कस का बहरी बेड़ा लंगर अंदाज था। मेरा पिंजरा दीगर जानवरों के पिंजरे से थोड़े फासले पर रखा गया था। मेरे दाएं जानिब सबसे करीब तरीन पिंजरा गरगैंडवा का था। बाकी जानवर अब तक एक दूसरे से मानूस और आदी हो चुके थे, लेकिन मुझे देखकर चंद एक ने थोड़ी देर तक एहतिजाजन चीखों पुकार की। बिलखुसूस बंदरों और स्याह पेशानी वाले चंपैंजियों ने खूब शोर मचाया। वो चीख चीख कर मेरा दिमाग खा गए थे। इसके बाद मारिया अपने एक रिंग मास्टर को साथ लाई और बड़ी मुश्किलों से इन्हें राम किया गया। ये राज के मैं एक गुरीले की खाल में था सिर्फ मारिया, चिंटू और तोकी पामा को मालूम था। गरगैंडवा ने मारिया को देखकर थोड़ी हलचल मचाई तो मारिया ने रिंग मास्टर को वहां से जाने का इशारा किया। फिर एक मानी खेज से निगाह और मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और फिर गरगैंडवा के पिंजरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरान और परेशान सा उसे देखता रह गया। किस कदर दलेर थी ये नाजुक अंदाम लड़की। जानवरों के मुतालिक तो मेरा भी यही नजरिया था कि ख्वाह वो कितना ही सधाया हुआ या मानूस हो, लेकिन बिलाखिर वो जानवर ही होता है। अक्ल व खिरत से आ रही, एहतियात लाजमन करनी चाहिए। गरगैंडवा ने मारिया को करीब पाकर अपना एक नुकीले पंजों वाला स्याह बालों से ढका हाथ बढ़ाया तो मैं एक लम्हे के लिए डर सा गया, मगर मैंने देखा मारिया ने मुस्कुराते हुए न सिर्फ उसका बाजू थाम लिया बल्कि खुद को इसमें भर भी लिया। गरगैंडवा होले होले खर्राटों की आवाजें खारिज करता हुआ मारिया को अब अपने दोनों बाजुओं में समोए बदन से मसलने लगा। मारिया भी उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती रही। इसके बाद मारिया ने मेरी जानिब इशारा करके उससे कुछ कहा। गरगैंडवा ने अपनी मोटी मोटी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सर दाएं बाएं खिलाया। जवाब में गरगैंडवा ने जोर से चिंगाड़ मारी। मैं दहल गया मगर मारिया मुस्कुराती रही। गरगैंडवा की तेज चिंगाड़ सुनकर रिंग मास्टर और दीगर चंद मुलाजिम परेशानी में दौड़ते चले आए। इनके हमरा चिंटू और तोकी पामा भी थे। मारिया ने इन्हें वापस जाने का इशारा किया तो वो मुतमईन होकर वापस लौट गए, लेकिन चिंटू और तोकी पामा वहीं मौजूद रहे। जरा देर बाद मारिया गरगैंडवा को प्यार करके इसके पिंजरे से निकली। मैं तो डर ही गया था जब उसने चिंगाड़ मारी थी। मैंने मारिया के करीब आने पर कहा, मैं समझा था बस अब वो तुम्हें भींच कर मसल डालेगा, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोली। चिंटू और तोकी पामा के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी। मेरी वजह से? मैं हैरान हुआ। हाँ, तुम्हारी वजह से। वो इसी तरह मानी खेज मुस्कुराहट तले बोली। जानवरों में भी जेलसी का मादा होता है। जब मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया तो वो जेलस होकर चिंगाड़ने लगा। यानी गरगैंडवा अपनी दोस्ती में एक दूसरे गोरीले यानी तुम्हें शरीक करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओह, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और मैं हंस दिया। इसके बाद मैंने संजीदगी से कहा, बंगाल तक कितने अरसे का सफर होगा? चट्टागांग की बंदरगाह पर हमारा जहाज लंगर अंदाज होगा। मारिया मतानस से बोली। जहाज की मौजूदा तयशुदा रफ्तार के मुताबिक और रास्ते की दीगर कानूनी चेकिंग का वक्त मिलाकर तकरीबन 15 से 20 घंटे या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। पूरा एक दिन समझ लो। हाँ, ऐसा ही है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, तुम अपनी तरफ से तो बेफिक्र रहो। वो तसल्ली करा कर चली गई। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं था और मेरे इर्द गिर्द जानवर। गरगैंडवा भी सुकून के साथ बैठ गया था। यहाँ खुराक वगैरह पहुंचाने का काम मारिया ने दानिस्ता बोगा के सुपुर्द कर दिया था, जो मेरे लिए भी खुराक लाता, जो जाहिर है इंसानी खुराक पर मुश्तमिल होती।
चंदर घाटी आसाम से बिलाकर रवानगी पाते ही मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि मैं बहरहाल इंडियन पुलिस के एक बड़े शिकंजे से बच निकला था। एक पाकिस्तानी का इंडियन पुलिस के नरगे में फंसना बिलाशुबा मेरे लिए बहुत खतरनाक होता। शुक्र था कि तकदीर मुझे मेरी असल मंजिल की जानिब बहरहाल गामजन रखे हुए थी। फौजिया की तलाश तो जैसे मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। साथ ही काली लहर के करता दरता मैडम लच्छी और रांगा लंगड़े को भी वासिल जहन्नुम करके हिसाब चुकता करना मेरा अव्वलीन मकसद था। यूं मैं रह रहकर कुड़ते दिल से सोचता, क्या फौजिया मेरी तरफ से मायूस हो गई होगी? क्या वो ये नहीं सोचती होगी कि मैं उसकी तलाश में एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा? हर लम्हा, हर साथ उसकी खोज में मसरूफ कार रहते हुए कितनी ही बार मौत के मुंह से निकला हूं। और जब वो एक दिन मुझे अपने सामने देख लेगी तो इस वक्त उसकी क्या हालत होगी, वो किस कदर खुश होगी। तब अचानक किसी वसवसा अंगेज ख्याल तले मेरा दिल डूबने भी लगता था कि फौजिया मेरे खतरनाक और बदतरीन दुश्मनों के नरके में थी और न जाने बेचारी किन खालों में थी भी या नहीं। इससे आगे का तस्वुर मेरे लिए लर्जा देने वाला होता, लेकिन मैं तहिया कर चुका था कि कुछ भी हो मैंने फौजिया का पता लगा कर छोड़ना था। अगर खुदा न ख्वास्ता मैडम लच्छी या रांगा लंगड़े ने फौजिया को कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को निशाने इबरत बनाकर दम लूंगा। इन्हें बना सिर्फ अपनी मौत में नजर आएगी, मगर वो मौत की गोद से ज्यादा अजियतनाक हालत से दो चार होंगे। ये बात भी दुरुस्त थी कि शीना से जुदा होने के बाद मैं आबिद गुजरगाहों के अते पते से आरी हो चुका था, वरना इन दरियाई और नहरी आबनाओं से शीना के साथ अगर मेरा सफर जारी रहता तो मैं निस्बतन जल्द मंजिल मकसूद यानी पीली खाड़ तक पहुंच जाता, क्योंकि शीना भी शरोपा कबीले से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप सरदार था, और मेरे दोनों बदतरीन दुश्मन मैडम लच्छी और रांगा लंगड़ा भी इसी तवहम परस्त कबीले के रूहानी पेशवा बने हुए थे। मेरी मालूमात के मुताबिक रांगा माटी झील ही से मंसूब ये इलाका था और यहाँ कई कबीले आबाद थे जिनमें मशहूर नाम चकमा, मूंग और दहल थे। इनमें तमाम परस्त और वहशी कबाइल भी शामिल थे। ये सारा पहाड़ी और जंगलाती इलाका था। मेरी मंजिल पीली घाट थी जो रांगामाटी से सुंदरबन तक जाने वाली एक मानसी नामी आबनाए के दरमियान वाक़ थी। यह आबनाए दर हकीकत बहिराए हिंद समेत बहिराए अरब और बेआफ बंगाल को मिलाती थी। मानसी दर हकीकत रांगामाटी की एक मारूफ नदी का नाम था। यहाँ पिछले वक्तों में किसी राजा उतरिया की हुकूमत थी। यहाँ का कस्बा भी उसी नाम से मौसूम था। यूं अगर मेरा शीना के साथ दरियाओं और नहरों में सफर जारी रहता तो यकीनन मैं बासानी मंजिल मुराद तक पहुंच चुका होता, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी। अब मुझे ही पीली घाट को तलाशना था। बेशक अब मारिया अपनी पूरी सर्कस कंपनी के साथ मेरे हमरा थी, लेकिन वो तो सर बसर पीली घाट से नावाकिफ थी। बस दीगर सफरी और कागजी मसाइल से बचने के लिए मुझे इनकी आड़ मुयस्सर थी। यही मेरे लिए काफी था। मेरी आखिरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं रही थी। फौजिया मेरे अजली दुश्मनों के नरगे में किस हाल में थी मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं था। बस मेरा दिल गवाही देता था कि वो जिंदा थी, वरना अब तक मैं मायूसियों के गहरे कुएं में गिरकर सब छोड़ चुका होता। मेरा दिल कहता था कि वो जिंदा है और हर लम्हा मुझे मदद के लिए पुकार रही है, बल्कि आस लगाए बैठी है कि मैं उसे भेड़ियों की कचार में इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ने वाला था। चट्टागांग की तरफ आहिस्ता रवि से सही सफर जारी था। ऊपर क्या कुछ हो रहा था मुझे कुछ इल्म नहीं था।